India rates. As you know that in our previous lecture we have done part 1 chapter 9 class 6 NCERT, and the name of the chapter is vital villages and thriving towns, means महत्वपूर्ण गांव तथा उभरते हुए नगर. And in previous lecture we have done part 1, and today remember that we are going to start part 2. Yes, this is part 2. ओके, तो चैप्टर का नाम है महत्वपूर्ण गांव तथा उभरते नगर. सेकंड पार्ट. In the previous chapter, in the previous part, we have discussed about the tools and weapons that is made of iron, as well as the agriculture, which has been the great connectivity with the villages and towns, and the development, the great cities. Okay, and now in the part 2, we are going to discuss about the first term, that is coins. Yes, as you know that coins are very important for the purpose of trade and business, etc. This era also. इस युग में भी आज coins का, सिक्कों का जो है बहुत बड़ा important है. But if we talk about the history, then there is a great importance of coins, because the coins of the particular era tell us about the economic, social and the religious life of the people, as well as lot of information that we can gain from them. तो जो coins हैं, सिक्के हैं, इतिहास की नज़र से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो समय के हमें आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं, और हमारे लिए काफ़ी जो है लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं. एंड दीज coins in precious time or ancient time, the coins will be there of different type of metals like copper, silver, etc. Okay, तो अगर हम coins की बात कर रहे हैं, सिक्कों की बात कर रहे हैं, तो ये सिक्के जो हैं किसी भी शासन के नज़रिए से अगर उसकी हमने परचोल करनी है, उसको हमने निरीक्षण करना है, तो उसमें एक अहम रोल जो है अदा करते हैं. एंड द सम ऑफ द coins that have been found during that time is known as punch symbol coins, as they have been carved as punch symbol on metal like copper. तो उस समय जो सिक्के पाए गए हैं वो उनको हम लोग पंच सिंबल कॉइन्स कहते हैं, कि एक तरह के पंजों के निशान, सिंबल्स या आकृतियाँ उस समय के सिक्कों पर देखी जा सकती हैं. अगर आप उसको नज़र डालेंगे उस तरह के कॉइन्स के ऊपर, तो देयर विल बी स्पेशल सिंबल्स ऑफ पंच दैट इज रिलेटेड टू द paws or any hands of a particular kings or animals or any other thing, जो जिसका संबंध किसी एम्परर, किसी शासक, राजा या जानवर से माना जा सकता है. एंड फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट दी बार्टर सिस्टम. ओके, एंड remember the term barter. Barter means exchange of things.
we know that the coins play a very important role in the purpose of business or trade. किसी बिजनेस व्यापार को लेकर सिक्कों का एक महत्वपूर्ण करेंसी का रोल रहता है कि जिसके बदले में अगर हम कोई चीज़ किसी से लेते हैं तो उसके बदले में कॉइन्स या करेंसी जो है दी जाती है. बट इन सम ऑफ द केसेस इन द एंशिएंट एरा देयर वाज द बार्टर सिस्टम. उस समय बार्टर सिस्टम था. बार्टर मीन्स एक्सचेंज ऑफ थिंग्स. जब चीज़ों की अदला बदली आपस में कर ली जाती थी. एंड it is believed that there was the business or trade in the form of exchanging the things known as barter system. चीज़ों की आपस में अदला बदली की प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती थी जिसको बार्टर सिस्टम कहते थे. एंड इट इज बिलीव्ड दैट there was there was a lot of production of salt in the coastal areas for trade purpose. According to Sangam text. In the previous lecture we have discussed about the Sangam text of Tamil that have been compiled and composed by the a poet in the special assemblies is known as Sangam. तो संगम टेक्स्ट तमिल भाषा का एक ऐसा साहित्य था जिसको कवियों के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा जाता था और माधुरी में वो लोग इकट्ठे होकर जहाँ पर उनका संगम होता था वो इस पर चर्चा करते थे. दिस इज नोन एज संगम टेक्स्ट. उनके अनुसार उस समय जो समुद्री तट के एरियाज थे वहाँ पर नमक का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता था बिजनेस पर्पस को लेकर और बार्टर सिस्टम में भी इसका काफ़ी ज़्यादा जो है उपयोग उस समय किया जाता था. नाउ विल टॉक अबाउट द सिटीज विद मैनी फंक्शंस और मल्टीपल सिटी. We can also give the name multiple city or city of varieties. Here we will talk about the great city that is a very famous from the ancient period, from the history, and today there is also a lot of importance and people are giving regard to this place. This is known as Mathura. Mathura that has been set up 2500 years ago. तो लगभग 2500 years पहले 2500 साल पहले के लगभग ये सेटअप हुआ इस सिटी का. दैट इज नोन एज मथुरा एंड इट इज वन ऑफ द famous city. And also here I want to mention that about 2000 years ago it became the second capital of Kushans. तो जो दैट विल लेटर रीड अबाउट दैट. हम इसके बारे में बाद में कुशांस के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे और मथुरा के बारे में भी आगे फर्दर जानकारी लेंगे. लेकिन इसमें हम लोग ये अभी चर्चा करेंगे कि 2500 साल पहले जो लगभग ये मथुरा सेटअप हुआ और 2000 ईयर अगो इट बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशांस. जो कुशान वंश था, जो कुशान डायनेस्टी थी, उसकी ये दूसरी राजधानी बनी. ठीक है, मथुरा. और जैसे अगर हम इसके किसी फेमस रूलर की बात करें तो कनिष्क वाज द फेमस रूलर ऑफ कुशान. कनिष्क was the
famous ruler of Kushan कुषाण डायनेस्टी। तो कुषाण वंश का शक्तिशाली अगर राजा था, प्रसिद्ध राजा था, अगर उसकी हम बात करें तो वो राजा कनिष्क था। ओके, एंड देयर इज अ विल एक्सप्लेन दैट व्हाई इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ मथुरा, बिकॉज it lies on the pass route of trade and travel from north west to north south। ये इसके कारण भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गिनी जा सकती है क्योंकि ये एक मेन रास्ता था, एक मेन रूट था, पासिंग रूट था, जहाँ पर ट्रेड एंड ट्रेवल, किसी तरह का भी बिजनेस व्यापार करने के लिए, यात्रा करने के लिए इस रास्ते से होकर जाना पड़ता था। दैट वाज कनेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ साउथ। तो इस नज़रिए से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इट इज़ आल्सो वेरी फेमस सिटी बिकॉज देयर आर वी कैन फाइंड lot of Buddhist monasteries, Jain shrines, so we can find lot of Buddhist monasteries and Jain shrines here। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो where the monks and nuns were permanently setting and try to meditations and teaching and preaching the people, the monasteries and known as the hars also in Hindi, मठ, जिस मठ पे रहकर वो nuns जो थे, सन्यासी monks रहते थे, उसको मोनेस्ट्रीज कहते थे। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर बनाई गई। एंड जैन श्राइन्स, और जो श्राइन्स आर लाइक अ टेम्पल्स, श्राइन एक तरह के मंदिर थे, और लाइक यू कैन से दैट पिलग्रिमेज या तीर्थ स्थान थे जिनका जैन धर्म के साथ संबंध था, जैन धर्म के तीर्थ स्थान। एज वेल एज वी नो दैट city Mathura is well famous for Lord Krishna and his activities। Here people worship Lord Krishna in an efficient way। तो ये जो मथुरा है, हमें पता है कि इतिहास में जानी जाती है भगवान कृष्ण के नाम से। मथुरा में जो भी गतिविधियां भगवान कृष्ण ने की या उनका जो शेड्यूल वहाँ पर रहा, वो सारा वर्णन वहाँ पर, ये लोगों का एक फोक बन चुका है, वहाँ पर एक ट्रेडिशंस बन चुकी है, एक गाथा बन चुकी है, जो लोग वहाँ पर भगवान कृष्ण की गाथा सुनाते हैं और किस तरह से वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं डिफरेंट तरीके के साथ, उसका वर्णन भी इसमें किया गया है। एंड देयर वर मोनेस्ट्रीज एज वेल एज श्राइन्स and the lot of things related to Lord Krishna as well as temples that have been probably built by the emperors or rich persons or merchants etc. of that period। उस समय के लोगों, राजाओं, अमीर लोगों, व्यापारियों के द्वारा
ये मठ मंदिर विहार या भगवान कृष्ण से संबंधित स्थान जो थे स्थापित किए गए। ओके, एंड नाउ विल टॉक अबाउट द crafts and crafts persons. Okay, we can also find this simple. There has been the work of art and craft, and the archaeologists have found some of the excavation that prove that there was some type or different type of crafts were there, and for this purpose they have found lot of pots there, and these pots are named northern black polished ware. Northern black polished ware. It has been named after the North region and fine black polish at the surface. Okay, which tell us about the different type of the pores, and there have been also found so many type of the jars, long jars that have been filled with the liquids. It can probably be for using for the wine as well as the oil. Some type of jars filled with liquid of oil and wine. तो ये माना जा सकता है कि ये बड़े बड़े जार जो बनाए गए उनमें लिक्विड रखा जाता था, और ये खास तरह का लिक्विड होता था जिसको हम लोग तेल या मदिरा या शराब भी जो है कह सकते हैं. एज वेल एज देयर वर द साइंस of the dying wax also have also been found by excavation. Okay, especially in Varanasi, and it proved that there was the workshop that was for the कलरिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स, जहाँ पर कपड़ा बनाया जाता था और अलग अलग प्रकार के कपड़े जो थे बुने जाते थे. एज वेल एज देयर वर आल्सो सम टाइप ऑफ वर्कशॉप्स दैट वाज नोन एज श्रेणीज. स्पेशल वर्कशॉप्स known as Shrenis, where lot of trained and untrained and skillful all persons or craftsmen were working there, or they were weaving, okay, and spinning also. यहाँ पर कताई बुनाई का काम भी किया जाता था. ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों तरह के कारीगर वहाँ पर पाए जाते थे, and they get the salary according to the quality and the quantity. The workers got the salary as per the quality and quantity. Mostly
There were the slave persons, the slave women, retired women, okay, or widows were there who were spending their time and earning. जो जहाँ पर ज़्यादातर बूढ़ी औरतें, विधवा औरतें या गुलामों की औरतें यहाँ पर आ करती थी और जो अपनी आजीविका कमाने के लिए यहाँ पर जो है वो काम किया करती थी. एंड देयर वाज a special officer for supervision this work. Was known as superintendent. तो वहाँ पर जो सारी जो वर्कशॉप्स थी, वहाँ पर जो भी क्लोथिंग का, वीविंग और स्पिनिंग का काम होता था या जो भी आर्ट का काम होता था, क्राफ्ट का काम होता था, उसकी सुपरविज़न के लिए, निगरानी के लिए एक स्पेशल, एक खास, एक विशेष ऑफिसर नियुक्त किया जाता था जिसको वहाँ का सुपरिटेंडेंट कहते थे. ओके, एंड ही वॉच एंड सुपरवाइज ऑल दी वर्क. बट विदाउट वर्क, इफ ही वांट टू टॉक any other topic to the woman, then he should be punished. अगर वो इसके अपने काम के अलावा किसी और के साथ कोई और दूसरी बात करता था, कोई मंदी बात करता था, तो उसको उस समय सज़ा दी जाती थी. एंड दी वर्कर्स और वुमेन्स, दे वर बाउंड टू वर्क देयर एज प्रिस्क्राइब. निर्धारित किया गया काम उनको अपना पूरा करना ज़रूरी था. एंड इन द केस इफ दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क, they have to pay fine or sometime their thumb have been cut. तो ऐसा रिवाज था कि अगर वो अपना काम नहीं करते थे निर्धारित समय पर दिया गया काम, तो उनको जुर्माना लगाया जाता था. कभी कभी जो था उनका जो था थंब था, अंगूठा था, उसको सज़ा के रूप में वहाँ से कट भी किया जाता. ऐसे जो है प्रमाण मिलते हैं. along with there were also goldsmith, blacksmith, potter, कारपेंटर, सेंटर. और ये ग्रुप मिलते हैं कि उस समय इसके अलावा और भी कारीगर जो थे काफ़ी मात्रा में वहाँ पर पाए जाते थे. दैट इज गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, पोटर, कारपेंटर, etc. And now we'll talk about a closer look arithmetic. तो हम लोग एक नज़र डालेंगे अरिकमेडू पर. अरिकमेडू दैट इज इन लाइज और सिचुएटेड और सेटअप इन पांडिचेरी. ठीक. Pondicherry we can find the site or place known as Arikamedu that was very well and very famous for the purpose of trade and import and export also. Okay, there have been found some type of the ports. वहाँ पर कुछ बंदरगाहें भी मिली हैं. And probably the finished material or the raw material was unloaded there by the ships. जहाज़ों के द्वारा वहाँ पर कच्चा माल या तैयार माल जो था इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था. एंड दिस वाज आल्सो वाज वर्किंग एज अ वेयर हाउस. एक तरह के वेयर हाउस की तरह वो जो था वो काम कर रहा था. ओके, वेयर दे वर सेविंग देयर थिंग्स, जो चीज़ें थी, the productions, or that was the raw material or the finished one that has been kept preserved there, जो वहाँ पर समानता सुरक्षित रखा जाता था. So it was also was like a warehouse. Okay.
तो इस तरह अरिकमेटू जो था उस समय दैट वाज द मेन और द सेंट्रल फिगर ऑफ द ट्रेड एंड बिजनेस। वो उस समय बिजनेस का व्यापार का एक मुख्य जो था केंद्र बन चुका था। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस अरिकमेटू दैट इज इन Pondicherry, okay, and at last we'll discuss about the great city Rome. The great city. Yes, yes, we have listened about the Europe, and that was it was the famous city of Europe, which was flourishing along with गंगा रिवर। तो ये एक ऐसा प्रसिद्ध शहर है यूरोप का जो कि उसमें विकसित हो रहा था, फ्लोरिश हो रहा था, डेवलप हो रहा था गंगा की घाटी के साथ साथ ये भी डेवलप हो रहा था। ओके, एंड एट व्हेन देयर वाज द रूलिंग और अथॉरिटी ऑफ एम्परर अगस्टस, described that it was the city of bricks which he turned into the city of marbles। तो उस समय वहाँ पर जो शासक थे एम्परर अगस्त, उनका खुद का वर्णन करना है कि वो बताते हैं कि इस सिटी को, दैट सिटी इज नोन फॉर द ब्रिक्स, उसको ईंटों के लिए जाना जाता था। इट वाज वेरी फेमस विच ही टर्न्ड इनटू द सिटी ऑफ मार्बल्स, जिसको उन्होंने मार्बल्स की, पत्थर की सिटी या पत्थर की नगर के रूप में जो था डेवलप कर दिया था, फेमस कर दिया था। ओके, एज वेल एज he also built some type of mini theaters there known as amphitheaters। Amphitheaters, okay, so he also described that he has set up some type of the amphitheaters there where the ordinary or common people can meet and can see the different type of shows, as well as they can relax there. There was also some type of bathings, rows of bathings, but it was they were different for men and women, and there were the different timing for men and women। वहाँ पर एम्फी थिएटर सेट किए गए थे जहाँ पर लोग कुछ चीज़ों को, कुछ घटनाओं को इकट्ठे बैठकर आराम से देख सकते थे, अपने आप को रिलैक्स कर सकते थे। आदमी और औरतों के लिए वहाँ पर बड़े बड़े जल स्नान घर बनाए गए थे, अपने आप को जो था सेटअप करने के लिए, ठीक है, रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को आनंद देने के लिए, शांतमय करने के लिए। तो उसके लिए आदमी और औरतों के लिए निर्धारित समय भी अलग अलग था, और आदमी और औरतों के लिए स्नान घर भी जो थे अलग अलग बनाए गए थे। दैट वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द ग्रेट सिटी ऑफ रोम, that is the main famous city of Europe। Okay, so student, this is all about this chapter। I hope you have enjoyed, and if you are gaining really the knowledge from our lectures, so please like and subscribe our channel